In the name of Allah, the most gracious. Assalamu alaikum, my dear students. ये छू class 8th subject mathematics. Chapter is discuss करा mensuration. The image exercise 10.2 question 5 to question 6 करो आज इस हाल. Question 3 to question 4 uses हाल कोर. Source related with the parallelogram. With the trapezium. Question 5 is one. The diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. Yeh chu wana gobrio rhombusik diagonals sh dith. Toy ash parallelogram chunki quadrilaterals win में toy quadrilateral का 4-sided figure ठीक है. अगर यह था उसना A B C D each quadrilateral each 4-sided figure या a plane figure made up of 4 line segments या bounded by 4 line segments. Okay, मगर याथ मज बुझू तो याथ मज ज side opposite यानी opposite pair of side AB is opposite DCS AD is opposite BCS. Yath quadrilaterals must 2 pair of opposite sides are equal, be parallel. Yani 2 pair of opposite sides are equal and parallel. Akasan equal, barabar, yani length is barabar, be parallel. Parallel go yani thumbs side asan intersect karun ja karan ki इस पर AB to DC parallel intersect करा कि BC to AD they are also parallel intersect करा कि गोई इथिस quadrilateral शीस ना या सगे parallelogram. rhombus तिश अख quadrilateral आकासा या अख parallelogram आकासा मगर तमिक चुनवे साइड छ आसन equal. Okay. For example, if the name of this rhombus is A, B, C and D. Go sub quadrilateral yet 2 pair of opposite sides equal to parallel. That's called as parallelogram. The yet parallelogram must one side equal as in youth AB as to the BC to the CD to the AD. Okay. Yim ki is a diagonal says dit. Diagonal के सो line segment use opposite vertices in join आश करा. Just like see here, यहाँ पे देखिए आप A, B, C and D. They are 4 vertices. A is vertex opposite C, B is vertex opposite D. So the line segment which join is A and C is a vertex, or we can say a diagonal. So should diagonal as I use in vertex and pan we join करा. A line segment which joins B with D, that is which join is B to its opposite vertex, that is a diagonal. अब इन्हीं दो डायगोनल्स का मेजर हमें दिया गया है. हमने इस रोहम्बस का एरिया निकालना है. वन तौर पे फिक्री रोहम्बस क्या गो तो पैरेललोग्राम क्या गो रोहम्बस दिश अख पैरेललोग्राम है. हियर डायगोनल्स दिए गए हैं. मान लेते हैं इसको हम D1 लेंगे तो इसलिए होते हियर डायगोनल 1 दैट इज D1 कितना है 7.5 सेंटीमीटर. Diagonal 2 that is D2 diagonal 2 कितना है 12 सेंटीमीटर. Therefore अगर ये बात आप याद रखें, अगर रोहम्बस के दो डायगोनल्स दिए गए हों तो उसका एरिया जो है उसके लिए कौन सी फॉर्मूला है. एरिया ऑफ रोहम्बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ diagonal 1 that is D1 into D2. So this is equal to half of diagonal 1 कितना रखा हमने 7.5 into diagonal 2 12. Okay,
2 1 जार 2, 2 2 जार 2 6 जार 12। तो यहाँ पे क्या रह गया 7.5 इंटू 6, दिस इज इक्वल टू 6 5 जार 30, 6 7 जार 42, 42 प्लस 3 दैट्स 45.0, दैट्स 45 चूँकि सेंटीमीटर में दिस इज स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रोहम्बस जो होगा दैट इज 45। तो लिहाजा आप याद रखें कि अगर डायगोनल्स दो दिए गए हों रोहम्बस के तो उसका एरिया जो है वो किस फार्मूला से हम निकालते हैं, हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ओके, सिमिलरली देयर इज क्वेश्चन 6 दैट इज आल्सो रिलेटेड, यह भी रोहम्बस से ही रिलेटेड है। अब रोहम्बस आपको समझ में आया। क्वेश्चन 6 जो है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोहम्बस, एरिया ऑफ रोहम्बस निकालना है। whose side is 6 centimeter and whose altitude is 4 centimeter. Area of rhombus, this is altitude, that is the perpendicular distance between two parallel sides. तो हमें क्या दिया गया है, साइड ऑफ ए रोहम्बस, साइड ऑफ ए रोहम्बस ये गिवन है कोता 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना है 4 सेंटीमीटर। चूँकि मैं वन तक गोडथ युस ये रोहम्बस आसान यह बेसिकली आसान पैरेललोग्राम। ओके, मगर फर्क यह चीज पैरेललोग्रामस मज आसान 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स यम इक्वल आसान, जस्ट लाइक ए बी इसका अपोजिट साइड डी सी है, यह दो इक्वल है, ए बी ए डी के बराबर नहीं है। लेकिन रोहम्बस में पूरे के पूरे जो उसके 4 जिले हैं वो एक आपस में बराबर होते हैं। तो लिहाजा ये रोहम्बस जो है ये भी एक किस्म की पैरेललोग्राम है। तो सिंस रोहम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, रोहम्बस जो है ये भी एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो रोहम्बस का भी एरिया है। सो एरिया ऑफ रोहम्बस, दैट मीन्स दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक्चुअली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उसके लिए फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है इसके लिए एक हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि रोहम्बस जो है वो भी एक किस्म का पैरेललोग्राम है, इसलिए उसका एरिया बिल्कुल पैरेललोग्राम के एरिया के जैसा निकलेगा। तो एरिया ऑफ रोहम्बस is equal to area of parallelogram. तो area of parallelogram is given by the formula half of base into height. Okay, so this is half base. आपको base दिया गया है, base that is the side of a rhombus, that is 6 centimeter into height, that is 4 centimeter. Okay, so 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 into 4, 3 into 4 that is 12 square centimeter. This is the area of rhombus. अब क्वेश्चन पे आइए आप, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। ऑल्सो अब एक डायगोनल दिया गया है, पहले हमने एरिया निकालना था, एरिया अब उसका निकाला है हमने। अब एक डायगोनल दिया गया है, ऑल्सो वन डायगोनल ऑफ ए रोहम्बस इज इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड अदर डायगोनल। सिंस अभी जो क्वेश्चन 5 में मैंने आपको दिखाया, एरिया ऑफ रोहम्बस किस फार्मूला से हमने निकाला, अगर डायगोनल्स दिए गए हों, हाफ ऑफ d1 इंटू d2। चूंकि एरिया ऑफ रोहम्बस कितना निकला ऊपर, दैट इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ d1 कितना है 8 इंटू d2, यह हमें मालूम नहीं है क्योंकि अदर डायगोनल का लेंथ हमने ढूंढना है। सो दिस वी गेट, दिस इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर is equal to 8 1s are 8 upon 2 d2, that is diagonal 2. So this is 2 2s are 4, 2 1s are 2
इसका और इसका हमने क्रॉस किया, दिस इज 8d2, और यहाँ पे d2 निकलेगा, दिस इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन 8. So d2 is equal to 8 1s are 8, 8 3s are 24. So d2 जो होगा that is 24. अब देखिए आप, हम क्रॉस चेक करेंगे. एरिया ऑफ rhombus is equal to half of d1 into d2. Okay, so that's half of d1 कितना है 8, d2 कूद रहा 3, 2 1s are 2, 2 4s are 8, so that's 4 into 3, that's 12. तो एरिया ऑफ rhombus 12 जो हमने ऊपर निकाला. So the question is correct. Dear students, ये क्वेश्चन 5 to क्वेश्चन 6 तुलियो तो पन्नेस नोटबुक्स पे बेकरी प्रैक्टिस. तो एक बात आप याद रखें, अगर रोहम्बस के डायगोनल्स दिए गए हों तो उसका फार्मूला उसका एरिया हम किस फार्मूला से निकालते हैं, हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. और अब अगर रोहम्बस का साइड या बेस या उसका अल्टीट्यूड दिया गया हो तो उसका एरिया पैरेललोग्राम की फार्मूला के तरीके पे निकलता है, क्योंकि रोहम्बस जो है वो भी एक किस्म का पैरेललोग्राम है और उसके लिए फार्मूला है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. So this was question 5 and question 6. Note down these questions. Thank you very much.